Okay, now there are some properties of ROC. Property number 1, ये अभी तक हमने जितना कुछ देखा है, ROC is a ring or a disk in the Z plane centered at the origin. अभी हमने देखा कि या तो वो रिंग था, तो या एक डिस्क थी और सेंटर होती है ओरिजिन के ऊपर. ठीक है, यानी कोई इस तरह की है पजट. अगर ये आपका ROC, ये आपका यूनिट सर्कल है, so it has to be either it would be something like this. इस तरह की एक डिस्क रिंग होगा, सेंटर्ड ओरिजिन पे ही होगा ना, या इट वुड बी समथिंग इंटायर थिंग, ये पूरा का पूरा आपके पास डिस्क है, सारी की सारी है, पूरी डिस्क है ना, एक ओल्ड डिस्क अगेन सेंटर्ड ओरिजिन. कोई इस तरह की चीज नहीं होगी कि कोई इतना सा रीजन डिफाइन कर दिया जाए कि ये जी ट्रांसफॉर्म, ये ROC है. नहीं, इट वुड ऑलवेज बी सेंटर्ड अबाउट ओरिजिन, आइदर अ रिंग और अ डिस्क बेस्ड ऑन द सीक्वेंस. Second property states the Fourier transform of x of n converges if and only if the ROC of the Z transform of x of n includes the unit circle. If ROC includes the unit circle, say this is a unit circle और ये इस ROC के अंदर शामिल है, only then the Fourier transform exists. ठीक है, if it is not part of ROC, Fourier transform will not exist. Property 3 states the ROC cannot contain any poles. So हमने अभी जितनी भी expressions देखी, we saw that's always away from the pole or inward from the pole. So it does not contain any pole. अगर ये दो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड सीक्वेंस का मिक्स भी था, तो ये पोल दोनों शामिल नहीं थे, उनके दरमियान वाला एरिया शामिल है. Right? So we cannot have the poles to be part of ROC. Property 4 states if x of n is a finite duration sequence, a sequence that is zero except any finite interval, finite length sequence, then the ROC is the entire Z plane except possibly Z equals to 0 or Z equals to infinity. Right? Say मैं एक sequence example लेता हूँ. Property 4 is important. Say I say कि my x of n is equivalent to del of n plus del of n minus 1. Right? In this case, my x of z would be equivalent to 1 plus z power minus 1. ठीक है जी. If I further solve it out, it would be 1 plus 1 over z. If I further solve it out, it would be z plus 1 over z. So in this case, it has got a pole at 0 and a 0 at minus 1. So if I want to find out its ROC, it would be the entire z plane except z equals to 0. So this is defined except possibly z equals to 0 or z equals to infinity वाला केस कब आएगा. It means the entire z plane is part of your ROC except origin. Now you define another limited signal x of n to be equivalent to del of n plus 1 plus del of n. So its x of z would be equivalent to z plus 1. Z plus 1. So its ROC would be, I need to define the ROC for which I need to find out the pole value. Its 0 is at 0 equivalent to minus 1 and its pole is at z equivalent to infinity, because once I plug in z equals to infinity, only then x of z goes to infinity. So again in this case ROC would be the entire z plane except z at infinity. So this property 4 defines that कि अगर एक finite duration sequence है, जिस तरह ये भी finite है, वो भी finite है, तो इस केसेस के अंदर ROC is the entire z plane except z0 or z infinity based on the signal, कि किस तरह का सिग्नल है. Property 5 says that if x of n is a right-sided sequence, a sequence that is 0 for n less than 0, उल्टी साइड पे नहीं है, then the ROC extends outwards from the outermost or the largest magnitude finite pole in x of z. Finite pole in x of z, एक pole infinite पे भी हो सकता है. That is not considered. Only the finite maximum pole in x of z. 2 and possibly including z equals to infinity. अगर z infinity पे है, अगर वहां पे कोई पोल भी है, तो फिर पार्ट नहीं होगा ये. अगर है तो पार्ट होगा. ठीक है. अगर एक पोल infinity के ऊपर भी है, right? So then in that case it will extend from the outermost finite pole, but not include the infinity. पूरा कवर करेगी लेकिन इन्फिनिटी कवर नहीं करेगी. लेकिन अगर नहीं है वहां पे पोल, तो वो भी कवर करेगी, इन्फिनिटी तक जाएगा. 6 states if x of n is a left sided sequence, this is opposite of this. In this case the ROC would be existing or extending inward from the innermost or the smallest magnitude pole, अंदर की तरफ आएगा. ठीक है. 7 says two sided sequence अगर है, in this case
जैसे आपने अपने एग्जांपल्स की थी, आइदर इट वुड बी अ डिस्क और इट वुड बी अ पर्टिकुलर रिंग, राइट, डिपेंडिंग अपॉन कि आप राइट से लेफ्ट आपके सीक्वेंसेस किस तरह से एक्सटेंड कर रहे हैं। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज दैट ROC मस्ट बी अ कनेक्टेड रीजन। कनेक्टेड रीजन मींस इट शुड बी अ रीजन ऑफ ओवरलैप। इस तरह नहीं हो सकता कि आप कहें कि ये है पहले, उसके बाद इधर जाके ये भी है, राइट, इट्स नॉट लाइक दिस कि ओके जी ये एक रीजन ऑफ कन्वर्जेंस एक ये है, फिर ये छोड़ दें आप और यहां पे एक और रिंग भी है, ये भी है। Not like this. It has to be a connected region, only one, which with covering all. Either this will be part of ROC or this is not possible. It means the X of Z does not exist. Okay जी. So now ये तो हमने देखे कि हम Z transform कैसे निकालते हैं. Now we can also compute the inverse Z transform. From the given Z transform we can come back and find out the time domain signal. Okay, now there are few methods of computing the inverse Z transform. These are the two most important ones. एक है inspection method कि आप just looking at the expression you can say कि इसका क्या inverse Z transform होगा. Like I know A and UN has got a Z transform 1/1 minus A Z inverse with Z going greater than A. ठीक है. So अगर ये मेरा X of Z है, इसको मैं देख के बता सकता हूँ कि इसका inverse Z transform ये होगा. Similar way if I say X of Z like this, by looking at this I can tell that my inverse Z transform or X of n would be equivalent to 1/2 whole power n U of n. बता सकता हूँ. So this method is called inspection method, right? और ये इसके अलावा भी हो सकता है. इसके अलावा ये क्या हो सकता है? माइनस ऑफ 1/2 whole power n U of minus n minus 1. ये भी इसका जवाब हो सकता है. कैसे पता चलेगा कि ये है या ये है? इस एक्सप्रेशन के दोनों टाइम डोमेन सिग्नल्स हैं. वी नीड टू सी दिस थिंग. इफ Z says greater than 1/2 it means this is a right hand side sequence, so this is the answer. But if it says Z is less than 1/2 it means this is a left hand side sequence, then this is the answer. So you need to, along with the X of Z, you need to see the value of Z for which it converges, and based on that we can determine कि ये कौन सा इसका जवाब ठीक है दोनों में से, because दोनों का एक ही जवाब आता था once we computed. Now consider this sequence with the Z transform 1/1 minus 1/4 Z inverse into 1 minus 1/2 Z inverse. अगर मैंने इसका inverse Z transform निकालना है, यानी sequence X of n निकालना है, तो मुझे अभी तक तो मैंने इस तरह के sequences solve किए हैं सिंगल. अब ये mixed type आ गया है. इसको अगर separate करना हो तो क्या तरीका है? I need to compute the partial fraction expansion of this. And if I do that, I can separate it out in two different terms, for which I can compute the inverse Z transform, right? अगर सिर्फ इसको देख के मैं प्लॉट करना चाहूँ तो इसके जीरोस और पोल्स को प्लॉट तो कर सकता हूँ, राइट? आई नो कि इसका उसने Z या ROC बताया हुआ है कि Z greater than 1/2. इट मीन्स कि एक इसका जीरो वैसे नजर आ रहा है कि एक पोल इसका 1/4 के ऊपर है और एक पोल जो है 1/2 के ऊपर है, और Z greater than 1/2 का मतलब ये है कि दोनों राइट हैंड साइड सीक्वेंसेज हैं. That has been told to you that both are the right hand side sequences, right? So I can go and compute the partial fraction expansion of this thing, and after partial fraction expansion I can find out that its answer would be, अगर इसको solve करें, I need to X of Z would be equivalent to whatever this expression is, 1/1 minus 1/4 Z inverse into 1 minus 1/2 Z inverse. We need to find out the value of, I can write it down like A upon something plus B upon something. उसके बाद I can go out and compute the A's and B's, ठीक है? और A and B's निकल आएंगे तो ये expression separate हो जाएगी. It would maybe something like this. Could have been like 1/2 divided by 1 minus 1/4 Z inverse plus maybe minus 1/2 divided by 1 minus 1/2 Z inverse, ठीक है? अब जब ये चीज सेपरेट आउट हो गई, X of Z इसके बराबर आ गया अब, तो आई कैन कंप्यूट दी X of n विच वुड बी, इसका सेपरेट निकालने, इसका सेपरेट निकालने, जो स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही है दैट वुड रिमेन एज इट इज इनटू 1/4 n UN प्लस minus 1/2 into 1/2 whole power n UN. So this would be the inverse Z transform. ठीक है? Okay, now there are some properties of Z transform which are important. First of all, it is linear.
जब आप z ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं तो सीक्वेंस अगर समेशन है तो वी कैन ऑलवेज सम देम अप और उसके बाद फाइनली निकालना है या इंडिविजुअली भी निकाल सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली टाइम शिफ्टिंग अगर हम कर रहे हैं इन द टाइम डोमेन x n माइनस n नॉट, तो इन द फोरियर डोमेन, इन द z डोमेन इट वुड बी मल्टीप्लाइड विद z पावर माइनस n नॉट। लाइक जिस तरह फोरियर ट्रांसफॉर्म में e पावर माइनस j ओमेगा n नॉट मल्टीप्लाई होता था, यहाँ पे z मल्टीप्लाई हो जाएगा। जिसकी एग्जांपल एक दी हुई है, कैसे अगर एक सीक्वेंस है इस तरह से z इनवर्स बाय 1/1 माइनस 4z इनवर्स, सो वी नो ओके इसका इनवर्स z ट्रांसफॉर्म वी नो दैट वुड बी 1/4 n un. If I do not consider this one, the z transform of 1/1 minus 1/4z, only this thing would be 1/4 n un, right? But this thing indicates some delay, right? It means the actual signal has been delayed by the amount written there. So it is 1. So it means whatever is signal, you just replace n with n minus 1. So answer would be this 1/4 n minus 1 u of n minus 1, and z is greater than 1/4. ठीक है जी। So this is the inverse z transform by using the time shifting property. n को इसलिए चेंज किया ना, देखो ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ये है कि अगर सीक्वेंस डिलेड हो तो z की उतनी पावर मल्टीप्लाई होती है x ऑफ z के साथ, ठीक है। तो जब ये एक सीक्वेंस गिवन था तो आई नो के x ऑफ z किसका है, ये x ऑफ z मल्टीप्लाई हो रहा है विद सम z इनवर्स। इट मींस कि x ऑफ n जो है वो डिलेड है टाइम डोमेन में, राइट। सो जो भी x ऑफ n निकलता है उसको आपने n जहां जहां पर है उसकी जगह पे आपने वो अमाउंट ऑफ, जिस तरह ये लिखा हुआ ना x ऑफ n जो था वो था a n u n। जब x ऑफ n माइनस 1 लिखूंगा तो इट वुड बी a n माइनस 1 u n माइनस 1 हो जाएगा। ओके, नाउ दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ द कोसाइन सिग्नल। देयर आर फ्यू एग्जांपल्स वी लाइक टू डू दैट। ओके, cos ओमेगा नॉट n u of n, this cos can be divided into the, by using the Euler's identity I can divide it into a e power j omega naught n plus e power minus j omega naught n divided by 2. So ये दो different quantities आ गई, right? I can plug it, take the z transform of this and z transform of this, right? So if I do that, it is similar to, I apply the x of z equivalent to summation x of n z power minus n. So x of n is now is this thing, which would be summation e power j omega naught n going from 0 to infinity z power minus n, because u of n would go. So अगर इसको मैं solve करना चाहूँ, summation it would be e power j omega naught into z power minus 1 whole power n, and n going from 0 to infinity. Again, infinite geometry summation formula can be applied. It would be 1/1 minus e power j omega naught into z inverse. This is here written over here. और इस तरीके से इसका भी निकल सकता है. So this is the answer, right? This is the z transform, and this is by using the property of the linearity, that a sequence can be divided into two sequences and separate Fourier transform और z transform can be taken up. तो एग्जाम्पल में बताने की कोशिश की है कि एक सीक्वेंस जो है इसको मैं ब्रेकअप कर सकता हूँ cos ऑफ जी, ये रिप्लेसमेंट समझ आ गई है. अब इसके ऊपर आप सेपरेट z ट्रांसफॉर्म अप्लाई करें, इस पे सेपरेट करें, ठीक है. तो ये पूरा सीक्वेंस सिग्नल है ना ये पूरा. तो z ट्रांसफॉर्म जो होता है वो क्या कहता है कि x ऑफ z इज इक्वल टू समेशन x ऑफ n z पावर माइनस n. तो x ऑफ n की जगह ये चीज रख दें आप पूरी, 1/2 बाहर आ जाएगा, समेशन e पावर j ओमेगा नॉट n, और ये जो u ऑफ n है वो इधर इफेक्ट ला देगा. आप सिंपल ये करें कि इधर आप कॉमन ले लें, n ऊपर पावर चली जाएगी, ठीक है. अब ये पूरी चीज क्या है बेसिकली अल्फा ऑफ n है ना, तो 1/1 माइनस अल्फा हो जाएगा. Okay, now this is another example starting with the known transform pair u of n is 1/1 minus z inverse. We know this. Okay, this would be the z transform for u of n. Just using the z transform expression we can compute this. I hope there is no trouble in this. Okay, so now I can determine the x of z of this sequence 2r of n cos omega n un, right? Cos omega n un. So I can replace cos with its Euler's identity, that would be r e j omega whole power n un r e bar minus j omega n u of n, right? So I can compute the separate z transform for this and separate d transform. अभी मैंने थोड़ी देर पहले सिर्फ इसके लिए निकाला था, अब r भी आ गया, तो बस जहां जहां पे वो e था सिंपल अब r भी साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो ये दोनों को आप सम अप कर देंगे तो फाइनल z ट्रांसफॉर्म आ जाएगा. Say if I have 1/z minus 0.25 and I want to, मैं आपसे कहता हूँ इसका
इसका आप निकालें जी इनवर्स जी ट्रांसफॉर्म। तो एज वी हमने जब तक जो इंस्पेक्शन मेथड से की उसमें इस तरह की एक्सप्रेशन नहीं था, आई नीड टू कन्वर्ट इट टू दिस फॉर्म, रैशनल फॉर्म में। इसको हम अब सॉल्व कर सकते हैं बाय लुकिंग एट नाउ दिस इज इक्वलेंट टू दिस थिंग। आई होप यू कैन रिलेट कि इफ यू जस्ट डिवाइड दी जी थ्रू आउट, राइट, इधर भी जी से डिवाइड करते हैं, इधर भी जी से डिवाइड करते हैं, यू गेट दिस एक्सप्रेशन, राइट। सो दिस इज नाउ समथिंग वी नो कि इसका हमें जी ट्रांसफॉर्म पता होता है, इनवर्स जी ट्रांसफॉर्म। दिस इज द इनवर्स, इसका इनवर्स जी ट्रांसफॉर्म निकालना चाहें दैट वुड बी 0.25 होल पावर n un, राइट। बट दिस थिंग इज इंडिकेटिंग कि x ऑफ n में कुछ डिले आया हुआ था, तो wherever n we have we can just replace it with n-1. So this is the answer, final answer for the inverse Z transform of this sequence, right? I hope this is okay. So now there are some other properties, like this is another important property, interesting property, कि अगर आपके पास एक sequence है where we are having in time domain we are multiplying something which is a complex number. ये z नॉट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर बट एट सम स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स नंबर। जिस तरह z होता है z इक्वल टू r e j ओमेगा, ये एक ऐसा नंबर है जिसमें ओमेगा की कोई भी वैल्यू हो सकती है, ये पूरे z एक्सिस को कवर कर रहा है। लेकिन अगर मैं डिफाइन कर दूं कि r ओमेगा नॉट के ऊपर जो z की वैल्यू होगी वो फिर z नॉट हो जाएगा, एक स्पेसिफिक वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये वो स्पेसिफिक वैल्यू है, कोई एक स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है x ऑफ n के साथ। तो अगर इसका आपने z ट्रांसफॉर्म निकालना हो तो दैट इज नॉट यूजुअली पॉसिबल और डिफिकल्ट टू कंप्यूट। इट्स गुड कि आप x ऑफ n का z ट्रांसफॉर्म निकालें और वट एवर इज दैट जस्ट डिवाइड z और रिप्लेस z विद z ओवर z नॉट, यू गेट द आंसर। लाइक इधर ये एग्जांपल एक की हुई है कि से x ऑफ n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है e पावर j ओमेगा नॉट n, ये से मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। सो अगर मैं इसको यूजुअली एक्सप्रेशन के अंदर प्लग इन करूं जो z ट्रांसफॉर्म की है तो इसको सॉल्व करना मुश्किल है मेरे लिए, टाइम लेगा। बाय जस्ट नोइंग दिस प्रॉपर्टी कि दिस here the z naught is e j omega naught, right? So I can just obtain the z transform of x of n which would be x of e j omega. x of n का जो z ट्रांसफॉर्म होगा वो x of z होगा। अगर सिंपल x of n कोई भी सिग्नल है तो x of z होगा उसका, ठीक है। और z in fact is equivalent to r e j omega, right? और अगर मैं इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना चाहता हूं दैट वुड बी x ऑफ e j ओमेगा बिकॉज r इज 1, राइट। ओके, सो नाउ इनफैक्ट मैंने इसका तो नहीं निकालना था, मैंने निकालना तो इस पूरे सीक्वेंस का था। तो जो चीज भी निकली है उसमें मैं z की जगह रिप्लेस कर दूं z बाय z नॉट। अब z नॉट यहां पे क्या है, वो ये है, तो इट मींस इट वुड बी z अपॉन e पावर j ओमेगा नॉट। अगर ये चीज मैं रिप्लेस कर दूं अंदर तो I'll get the answer. And now z for, अब ये z ट्रांसफॉर्म के लिए ये होगा, अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूं फिगर में तो it would be x of z is e j omega divided by e j omega naught. इसको फर्दर सॉल्व करें it would be x of e j omega minus omega naught. So this, if you remember, this was one of the property in the Fourier transform. Okay, this is another example now. This is the बिल्कुल previous वाली से example से इसको relate किया हुआ है कि r of n is being multiplied with a sequence cos omega naught and un. So this is my x of n. And this is being multiplied like this is the sequence now. R of n multiply हो रहा है cos omega naught n un के साथ, right? So if I know these x of z, if my x of n is equivalent to cos of omega naught n un, I know my x of z. अभी मैंने शॉर्टली इसको कंप्यूट किया था, लेट मी शो यू दैट। cos omega naught n un यही है, इसका x of z क्या है जी, 1/2 into 1/1 minus e power j omega naught into z power minus 1 plus 1/2 into 1/1 minus e power minus j omega naught into z power minus 1, right? This is the x of z of for this. Now my new x of n is r of n multiplied by cos omega naught n un. r is a complex number. स्केलर कह लें इसको आप इस टाइम पे कि स्केलर है, नहीं जिससे इनफैक्ट ये स्केलर क्वांटिटी इस तरह से है ना कि मैंने कहा ना कि ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर इनफैक्ट ऊपर उसके पावर n आ रही है ना, कैसे ऐसे निकल आएगा, ऐसे नहीं निकलेगा। जब हम करते थे सॉल्व के जनाब 2 पावर n un तो क्या ये ऐसे ही निकल आता था, का जवाब आता था 1/1 माइनस 2 z इनवर्स, राइट। तो अब ये कैसे ऐसे निकल आ सकता है, नहीं निकल सकता ना, ये चीज भी साथ है।
तो इसमें प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम। प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, वो ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि अगर हमारे पास z नॉट की पावर n, z नॉट इज एनी स्केलर और एनी कॉम्प्लेक्स नंबर टू बी स्पेसिफिक, जो रियल नंबर्स होते हैं या जो आपके रियल नंबर्स होते हैं, दे आर दी स्पेशल क्लास ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इनफैक्ट। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ लार्जर डोमेन, उसमें एक छोटा डोमेन है जिसमें रियल नंबर्स भी हैं, राइट, बिकॉज z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। तो अगर ये चीज जीरो हो जाए तो z इक्वल टू x भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है ना, जिसका रियल पार्ट है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट नहीं है। ठीक है ना। सो इनफैक्ट टू मेक इट अ लार्जर क्लास वी कॉल इट अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये सम कॉम्प्लेक्स नंबर, इट कवर्स द रियल नंबर्स एज वेल। So once this thing is being multiplied means I am on to this property. I can use this property because I know that x of n has got a z transform which I know x of z is this. तो अगर इससे मैं multiply कर दूं r of n, so what I need to do, I can compute the x of z, new x of z. I can call it x1. This is x1z. It would be whatever x of z I have computed. यहाँ पे जहां जहां z आया हुआ है वहां पे आप z upon z नॉट रख दें। तो z नॉट यहाँ पे क्या है, r है, r रख दें, राइट। सो अगर मैं इफ आई जस्ट डू दैट, इट्स वेरी सिंपल मैथमेटिक्स, में कोई ऐसी कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ पे जहां जहां z था वहां पे आप z अपॉन r रख देंगे, तो आंसर जो नया x1z निकलेगा दैट वुड बी 1/2 इंटू 1/1 माइनस e पावर j ओमेगा नॉट इंटू z इनवर्स बाय r इनवर्स, क्योंकि z की जगह z नीचे आ जाएगा ना, फिर z की जगह z बाय r आ जाएगा, तो r ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो इट वुड बी r टाइम्स z इनवर्स। सिमिलरली प्लस 1/2 1/1 माइनस e पावर माइनस j ओमेगा नॉट z इनवर्स इनटू r। तो इफ यू ऑब्जर्व हियर, ये r यहाँ पे हर जगह मल्टीप्लाई हो रहा है। We need not to compute the entire z transform. These are some shortcuts which if we know the properties we can use them and can compute to save time. x of z से x of z जिससे बना था वो x of n भी उसमें शामिल होता है और n उससे मल्टीप्लाई करें तो this thing, इसका अगर z ट्रांसफॉर्म लेंगे तो वो इसके बराबर होता है। तो अगर मैंने ये चीज ले लिया, I can simply multiply this expression with z power 1 with the negative sign. So अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस ऑफ z, तो ये और ये खत्म हो जाएंगे। ये z प्लस है, ये माइनस का, तो you'll get with this thing az inverse upon 1 plus az inverse. So I can separate out the scalar quantity, the delay and the thing which I know how to compute the x of n, right? So I can compute the inverse z transform of this expression. The scalar will come out as it is, right? The x of n for this thing is a power n, because this is a positive sign, so it would be minus of a whole power n into u of n. और जो z of -1 है, this will introduce a delay of -1 wherever n we have. ठीक है, so now ये चीज जो मैंने निकाली है, this answer is for this thing which was in fact ये चीज थी। इसके लिए I have computed back and computed the inverse z transform, right? And its inverse z transform would not be equivalent to x of n but n times x of n, because this is what the property states कि इसका z transform forward direction में लें तो वो इसके बराबर होता है, और इस चीज का inverse z transform लें तो वो इसके बराबर होता है। तो मैंने inverse z transform इस चीज का लिया था, तो ये whatever चीज I have obtained, it is equivalent to n times x of n. But my purpose is to obtain the x of n, so I can just send n on the other side. I'll get the x of n. So this simplification can be possible. ये चीज बराबर थी n times x of n के। I can, it's a very simple mathematics कि अगर माइनस a की whole power n minus 1 हो, I need to separate out the a. I can just write it down like -1 multiplied by a into n power n minus 1. So this power will go on to both of them, -1 whole power n minus 1 into a power n minus 1, right? So this has been done, और उसके साथ a को मल्टीप्लाई कर दें आप, तो ये a इसके साथ इस -1 को खत्म कर देगा, तो a n बच जाएगा और ये n राइट साइड से आगे डिवाइड हो गया। ठीक है, तो x of n इसके बराबर होगा। There are some other properties like conjugate sequence x conjugate n का z transform is s conjugate z conjugate,
टाइम रिवर्सल इफ आई टेक दी माइनस ऑफ एन, फ्लिप करें सीक्वेंस को तो z ट्रांसफॉर्म भी 1/z के साथ रिप्लेस हो जाता है. लाइक इफ I have written like x of n is like my x of n is equivalent to a power n u of n, then its z transform gives me an x of z equivalent to 1/1 minus a z inverse. ऐसा ही है. अगर मेरे पास x of n ये आ जाए कि it is basically x of minus of n equivalent to a power minus n u of minus n, right? So इसका z ट्रांसफॉर्म के लिए मुझे अब it's not equal to this, but I can use this property कि x of minus of n का z ट्रांसफॉर्म जो होता है that is equivalent to x of 1/z. तो जो भी x of z निकला है उसमें आप z की जगह 1/z रख दें. तो अगर इसका z ट्रांसफॉर्म मैं प्रॉपर्टी यूज करके कंप्यूट करूं तो x of z would be equivalent to 1/1 minus a, z की जगह 1/z होल इनवर्स आ जाएगा. फर्दर सॉल्व कर लें तो 1/1 minus a z would be the answer, right? And similar it would be applied onto the ROC. इसका जो ROC है for that modulus of z is greater than a. In this case this entire AZ should be lesser than 1, so my modulus of z should be less than a, opposite हो जाएगा. ठीक है, because now this is a left hand side sequence. This is modulus of a, modulus of z lesser than 1. So if I send it there, so modulus of z should be lesser than 1 over modulus of a. ये आंसर होगा इसका. Convolution in the time domain is equivalent to the multiplication in the Fourier domain as well as in the z domain. ठीक है. और there are some initial value and final value theorems जो कि आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं कि अगर किसी सीक्वेंस की इनिशियल वैल्यू निकालनी हो तो आप उसके z ट्रांसफॉर्म में लिमिट्स z tends to infinity प्लग इन कर दें, it will give you the x of 0. Like in this case जैसे ये था a n u n था, x of z इसके बराबर था. अगर मैं निकालना चाहता हूँ कि x of 0 क्या होगा, x of 0 क्या होगा, तो that would be equivalent to limit z tends to infinity in x of z, which is equivalent to limit z going to infinity of 1/1 minus a by z, right? तो z goes to infinity means जब यहाँ पे infinity आएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो x of 0 would be equivalent to 1. और ये मैं यहाँ से भी निकाल सकता हूँ. इसमें अगर n को मैं infinity n को अगर मैं 0 प्लग इन कर दूँ, a power 0 is equivalent to 1, right? So we can compute the initial value and the final values using the z transform, using this property. Similarly x of infinity would be equivalent to limit z going to 0 x of z. x of infinity भी निकाल सकते हैं, x of final value निकाल सकते हैं कि कहाँ तक जाके end होगा. ठीक है. But we are more concerned about the initial value theorem. But you'll find out in the books कि वहाँ पे final values भी निकाली जाती हैं. Okay, now this is another example. Now a pole zero plot is given. I can comment on certain things by looking at this plot. In fact, this is the h of z. 1 minus z power minus 4, 1 plus 3z inverse. So by looking at this particular expression, I can compute the zeros and poles of the system. I can compute that. वो यहाँ पे प्लॉट हुए हैं. ठीक है. We know इसको अगर हम सॉल्व करेंगे so we'll find out के we need to cover this. इनको आपको चेंज करना पड़ेगा. It would be z power 4 minus 1 divided by z plus 3 into z cube. It would be something like this. इसको जब सॉल्व करें तो इस तरह की चीज बन जाएगी. ठीक है. अब इसमें से अगर मैं जीरो पोल्स निकालना चाहूँ तो इसके पोल्स जो हैं, इसके 3 पोल्स तो ओरिजिन के ऊपर हैं. यहाँ पे 3 पोल्स हैं, एक है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है, तीनों ओरिजिन के ऊपर है. और एक पोल -3 के ऊपर है. ये रहा. सो 4 पोल्स आ गए. 4 जीरोस जो हैं वो 4th ऑर्डर पॉलिनोमियल है. तो इफ यू रिमेंबर z इज इक्वल टू a टाइम्स a, यहाँ पे 1 है तो 1 टाइम्स e पावर j 2 पाई k ओवर n. इसके आंसर निकलना चाहिए. और n इज इक्वल टू 4 है तो k वुड गो फ्रॉम 0, 1, 2 एंड 3. उनको आप रिप्लेस करें तो एक वैल्यू इधर आएगी, एक वैल्यू इधर आएगी, एक वैल्यू इधर आएगी, एक वैल्यू इधर आएगी. इनफैक्ट वो चारों पोल्स जो हैं वो इक्वली डिस्टेंट होंगे. तो ये 4 जीरोस आपके इस तरह से निकल आएंगे. और ये जीरोस जो हैं वो यूनिटी सर्कल के ऊपर हैं बिकॉज इस a इज 1, इसलिए ये जो सर्कल प्लॉट हुआ है वो यूनिटी सर्कल है. ठीक है. ओके. Now by looking at this particular plot, we can say certain things. इसके
ये तो एक तो इसके पोल्स और जीरोस डिफाइन कर सकते हैं हम कि कहाँ कहाँ पे होंगे। पोल जीरो प्लॉट भी कर सकते हैं बाय लुकिंग मैथमेटिक्स। ये बेसिकली मैटलैब की कमांड है। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि मैटलैब पे कैसे प्लॉट होता है। एंड वी कैन प्लॉट द पोल जीरोस ऑफ एनी सिस्टम, राइट। यहाँ पे कुछ और चीजें हम बता सकते हैं कि इनफैक्ट दिस इज अ राइट हैंड साइड सीक्वेंस। अगर हम एज्यूम करेंगे यहाँ पर जो हमारे पास मॉडुलस ऑफ जी है दैट इज ग्रेटर देन 3, तो ये इससे इस 3 वाले सर्कल से आउटवर्ड इसका सारा का सारा जी एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है। ये एग्जांपल मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले करा दी है कि अगर से आपके पास फ्लिप्ड सीक्वेंस हो तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो वी जस्ट सॉल्व इट। नाउ वी कैन आल्सो कमेंट अबाउट द स्टेबिलिटी एंड कॉजालिटी। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, लाइक दिस इज अ राइट हैंड साइड सीक्वेंस 1.2n un। इसको अगर प्लॉट करें हम तो ये इस तरह से प्लॉट होगा। ये 1 का जो है वो स्टैंडर्ड यूनिटी सर्कल है और इसका जो क्योंकि सॉरी so because this is a right hand side sequence, so ROC is away from the pole, 1/2 इसका pole है तो ये outward है, right? So this is a causal sequence number 1 and number 2 it includes the unity circle, so this is a stable sequence as well। और वो stable है क्योंकि 1 से कम है तभी तो ये sum up हो सकता है, तो ये stable sequence है, ठीक है जी। ओके एक और sequence देखते हैं इसे कि अगर ये sequence है which is a लेफ्ट हैंड साइड सीक्वेंस, सो दिस इज एन एंटी कॉजल सीक्वेंस और नॉन कॉजल सीक्वेंस। एंड सेकेंडली अगर मैं इसका पोल जीरो प्लॉट करूं और आरओसी को ड्रॉ करूं तो ये इनवर्ड आएगा, तो ये यूनिटी सर्कल आउटवर्ड है ऐसे, इट डज नॉट इंक्लूड द यूनिटी सर्कल, सो इट मींस दिस इज एन अनस्टेबल सीक्वेंस। तो ये सीक्वेंस जो है वो नंबर 1 एंटी कॉजल है, सेकेंडली नॉन स्टेबल है। टेक अनदर एग्जांपल u2 power n un। अगर इसको मैं प्लॉट करूं तो इस तरह से प्लॉट होता है। ये यूनिटी सर्कल है, ये इसका आरओसी है आउटवर्ड फ्रॉम 2, इट डज नॉट इंक्लूड द यूनिटी सर्कल, सो दिस इज अनस्टेबल बट दिस इज कॉजल। -2 power n u पर -n-1, दिस इज अ लेफ्ट हैंड साइड सीक्वेंस। आप इसको प्लॉट कर सकते हैं, ये कुछ इस तरह से प्लॉट होगा। अगेन दिस इज अ नॉन कॉजल एंटी कॉजल सीक्वेंस। अगर इसको प्लॉट किया जाए तो ये 2 से इनवर्ड आएगा क्योंकि ये जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड सीक्वेंसेस होते हैं उनका आरओसी जो है वो इनवर्ट फ्रॉम द पोल लोकेशन होता है, तो इसमें आपका जो यूनिटी वाला सर्कल है वो इंक्लूडेड है, सो इट मींस दिस इज स्टेबल सीक्वेंस। इट इज स्टेबल बट दिस इज नॉन कॉजल। ये वाला यहाँ पे इनफैक्ट बताया नहीं गया अगर, तो वी कैन एज्यूम दिस। मैंने यहाँ पे एज्यूम किया, मैं भी आगे कुछ केसेस डिस्कस करूंगा जहाँ पे अगर आरओसी ना बताया गया हो तो हम किस तरह से एज्यूम करते हैं कि ये इसमें मुख्तलिफ केसेस हो सकते हैं, राइट। बट जस्ट फॉर द सिंपलिसिटी पर्पस आई एज्यूम कि ये इज अ राइट हैंड साइड सीक्वेंस। अगर मुझे इधर बता दिया जाता है, एक चीज यहाँ लिख दी जाती है कि मॉडुलस ऑफ जी इज ग्रेटर देन 3, तो देन इट इज द फाइनल वर्डिक्ट कि ये राइट हैंड साइड सीक्वेंस है। हाँ तो ठीक है ना, ग्रेटर देन 3 होगा तो क्या चीज इन्फिनिट चली जाएगी, वो तो जी की वैल्यू प्लग इन करेंगे जब हम 3 तब जाएगा ना। सो दिस इज अ पोल जीरो प्लॉट फॉर h of z and unit circle is there. We have 2 poles and 2 zeros. Can we comment on the stability and causality and ROC? अभी एक जनरल केस है जिसमें मुझे सिर्फ ये बताया गया है और I have not been told anything about ROC और stability और causality। अगर ये 2 पोल्स हैं और 2 जीरोस हैं एक सिस्टम के, दोनों जीरोस जो हैं वो ओरिजिन के ऊपर है, दोनों पोल्स जो हैं एक पोल 1/2 के ऊपर है, एक पोल -2 के ऊपर है। कैन आई राइट डाउन दी सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन बाय लुकिंग एट दिस पोल जीरो प्लॉट? ओके, दिस इज योर क्विज। राइट डाउन इन टर्म्स ऑफ जी और इन टर्म्स ऑफ जी इनवर्स। फॉलो द सेम नोटेशन। इसके 2 जीरोस हैं, इट मींस कि इसके 2 जीरोस मींस जी स्क्वायर, ऊपर आ गया। इसके 2 पोल्स हैं, इट मींस 1 पोल इज एट जी माइनस 1 पोल इज एट जी +2. This is z simple. What is this? क्या आप लिखें जनाब, z square is not equivalent to z square upon z 1 minus 1/2 z inverse into 1 plus 2 z inverse। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये कभी भी इसके बराबर नहीं होगा, ठीक है। मे बी ये चीज इसके बराबर हो, इसको जब सॉल्व करें तो इसके बराबर आ जाए, आई एम नॉट श्योर, राइट। बट आई एम जस्ट टेकिंग अ वेरी सिंपल सिचुएशन कि ये 2 जीरोस थे, 2 पोल्स थे, तो आप जी की फॉर्म में लिखें उसको, डायरेक्ट जी इनवर्स में जाने की जरूरत ही क्या है। अब यहां से आप जी इनवर्स में जा सकते हैं, यू कैन डिवाइड जी इनवर्स एट बोथ साइड्स। यहां पे जी इनवर्स से डिवाइड कर दें, आप जी स्क्वायर से डिवाइड कर दें,
राइट, इट वुड बी z इंटू z, एक z इधर भेज दें एक z इधर भेज दें तो ये z स्क्वायर खत्म हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 अपॉन ये z इधर जाएगा, 1 माइनस 1/2 z इनवर्स कर देगा और इंटू 1 प्लस 2 z इनवर्स कर देगा। तो ये बेसिकली आंसर है, या तो इस तरह लिखो या उस तरह लिखो। तो दिस इज द h ऑफ, आई कैन कंप्यूट द h ऑफ z फ्रॉम हियर, राइट। नाउ अब h ऑफ z तो मुझे पता चल गया, मैंने निकाल लिया। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या इसको देख के मैं कुछ स्टेबिलिटी, कॉजैलिटी और ROC मींस रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के बारे में कमेंट कर सकता हूँ। तो मेरे पास दो पोल्स हैं यहाँ पर, आई कैन मेक फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों चीजें जो हैं ये डिपेंडेंट हैं ROC के ऊपर। पहले ROC डिफाइन करें, उसके मुताबिक स्टेबिलिटी या कॉजैलिटी डिफाइन होती है, राइट। सो से फॉर एग्जांपल इफ दिस इज बेसिकली, इसमें दो पोल्स हैं एंड इफ आई से दिस इज कंपोज्ड ऑफ टू right hand side sequences, in that case my region of convergence would be going outward from 2, ऐसा ही है, बिकॉज इसका जो सर्कल डिफाइन होगा 2 का, उससे बाहर की तरफ ROC होगा। दिस इज व्हाट माय डेफिनेशन ऑफ राइट हैंड साइड सीक्वेंसेस सेज, राइट। इन दैट केस अगर तो ROC उस तरह का है तो उसके अंदर यूनिट सर्कल नहीं आएगा, तो ये स्टेबल नहीं होंगे, बट दे वुड बी कॉजल बिकॉज राइट हैंड साइड सीक्वेंसेस दोनों। एक केस ही हो सकता है अगर ROC डिफाइंड नहीं है। दूसरा ROC इसमें क्या हो सकता है कि आपके पास 1/2 के सर्कल से इनवर्ड हो, तो ये दोनों सीक्वेंसेस लेफ्ट हैंड साइड हुए, इसका मतलब है उस केस में भी जो यूनिट सर्कल है वो उसका पार्ट एंड पार्सल नहीं है, तो ये स्टेबल नहीं होंगे। और चूंकि ये लेफ्ट हैंड साइड सीक्वेंसेस है तो ये एंटी कॉजल होंगे। ये सेकंड डेफिनेशन ROC की हो गई, ये सेकंड पॉसिबिलिटी हो गई। सेकंड में स्टेबिलिटी नहीं है ना, क्योंकि यूनिट सर्कल उस ROC का पार्ट नहीं है। हाँ, क्योंकि देखो ना इसका जो सर्कल डिफाइन होगा ये सर्कल होगा ना इसका, ये ROC है, ये कॉमन रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है, इसका भी और इसका भी, दोनों लेफ्ट हैंड साइड सीक्वेंसेस थे, तो ये कॉमन रीजन ऑफ ओवरलैप हो गया। जब ये कॉमन रीजन ऑफ ओवरलैप हो गया तो ये इस पूरे सीक्वेंस का ROC हुआ। इसमें ये यूनिट सर्कल पार्ट नहीं है तो ये स्टेबल नहीं हुए। सेकेंडली एंटी कॉजल है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड सीक्वेंस आपने अज्यूम किए जब इस ROC को बनाया है, ठीक है। थर्ड पॉसिबिलिटी कुड बी दैट योर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इज इन बिटवीन दीज टू पोल्स, रिंग, ठीक है। इफ आई शो यू द डायग्राम्स वन बाय वन, इस तरह की हो सकती है ना। इट इज समथिंग लाइक, एक तो सिचुएशन ये थी, इनफैक्ट ये वो वाली चॉइस है नहीं, बट आई कैन से कि एक हमारे पास ये है और एक यहाँ पर है, तो जो इसका रेडियस है और जो इसका रेडियस है, एंड माई ROC इज इन बिटवीन दीज टू लाइक दिस। इसका मतलब ये हुआ इससे जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस था वो आउटवर्ड था और उससे इनवर्ड था, ऐसा ही है। और इसके दरमियान में यूनिट सर्कल भी आ रहा था। So now this is combination of two sequences, one is right hand side, second is left hand side, and it is stable because ROC covering the unit circle, but this is anti-causal because of the second sequence which was the negative or left hand side sequence. इसके लिए जो region of convergence है वो होगा this plus this plus this, which would be A of n U of n plus B of n U of n plus C of n U of n. इस केस में होगा minus of A of n U of minus n minus 1 प्लस माइनस ऑफ, ये माइनस हो जाएगा B ऑफ n U ऑफ माइनस n माइनस 1 माइनस ऑफ C ऑफ n U ऑफ माइनस ऑफ n माइनस ऑफ 1, ठीक है। ये इसके बराबर होगा, इस तरह से ये निकल सकता है, इस तरह से ये निकल सकता है। थर्ड वाले का इसका किस तरह करेंगे, इसका इस तरह से होगा कि ये आउटवर्ड है, A से आउटवर्ड है, ठीक है, और इन दोनों से इनवर्ड है। इट मींस A ऑफ n U ऑफ n माइनस B ऑफ n U ऑफ minus n minus 1 minus C of n U of minus n minus of 1. So next class में we'll start off with chapter number 4, right? So कम थोड़ा सा पढ़ के आइएगा उसको। वीडियो खत्म करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। वस्सलाम।